Welcome all. Welcome to Target UPSC and welcome to this GS3 lecture 1. I hope you have followed the instructions. आपको पता होगा instruction में क्या करना है. I hope everyone is ready with A4 sheets. A4 sheets के साथ ready है. And I'm again giving एक minute का मैं brief दूंगा कि how we are going to go about throughout the sessions. So I want you to divide your A4 sheets into 2/3 part and 1/3 part. 2/3 part is the notes which I'll be we'll be writing along with the sessions, and 1/3 part is with respect to brainstorming part. Listen to the sessions first. At the end, I'll take all the queries. If you break the sessions, consistency, it would impact my thought process also. So let's listen to me first, and at the end, I'll take all the queries. Do not worry, just focus on the session, and I want you to absorb the session as much as possible in this 1.5 hours itself, and your revision should be not more than 15 minutes after this session. So this topic or the time which you'll be spending with me should be of utmost concentration. You should imbibe each and every point. You should understand. So and आपका concentration जितना ज़्यादा रहेगा, आपका revision कम लगेगा. ठीक है? And ठीक है. Everything would be told to you in details as we move forward. Do not worry. Trust is the most important thing. ठीक है? As I told in the orientation sessions also. So ये सबसे important है. 2/3 and 1/3. Next important thing I would like to tell you, when I give you time for brainstorming, no one is going to write in the comment section. Everyone is going to deep dive into their paper and start thinking. Initially you might get 1 or 2 points. आपको starting में आपको points नहीं आएंगे. Do not worry. Points नहीं आ रहे. Do not worry, but trying is most important thing. What will happen in examination, I would like to tell you. Actual examination में we are going to have the same situation where you will have a question and you will not be able to, you will not know the question, but you still have to think. You still have to think and generate points. That practice is going to happen in the back end when I give you time for brainstorming and you do not know points and still you try. I hope आपने सबने syllabus याद किया होगा, right from GS1 to GS4. I've told you in the orientation sessions also. I give you 2-3 days also. I want you to, again, if you have not done it in the morning, first 5 minutes what you do is you read the syllabus at least for first 5 days, 5 minutes daily. आप पूरा end to end पढ़िए and try to remember it. You'll thank me at the end जब examination में, when you'll have time crunch and you have to generate points, you'll thank me, sir, आपकी वजह से I could generate points. एक important है. Next important thing is with respect to GS3, you have to remember that GS3 is dynamic. Dynamic in the sense is you have to have a mix of static and mix of current affairs, or what you say is it cannot be just static or it cannot be just current affairs. It has to be a mix of this both. ठीक है? So we are going to ensure कि जब भी हम कोई टॉपिक ले रहे हैं, I am going to show you with proof कि यार कौन सा themes है. The concept is static, the syllabus point is static, but what question related to current affairs can be asked? What question related to current affairs can be asked? Right? So this is most important thing. ठीक है? Another important thing is with respect to जब हम GS3 देखेंगे, make sure you write down. मतलब आपके पास फैक्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए टू सपोर्ट योर पॉइंट्स. जितना ज्यादा आप फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो ऑन टॉपिक वाइज, you have to remember those points. And if you have seen Mudita Bansal's video, what she has achieved is extraordinary, but what we can learn from her answer writing technique is wherever possible we have to support it with data, and we'll try to add a source also. And at the end, after 3-4 sessions, I'm going to give you a trick also कि वो कैसे करना है. चलेगा? Do not worry on that. इतना टेंशन नहीं लेना है. लेकिन जब आप इस सेशन में जो भी डेटा पढ़ोगे, what I want you to do is, एक तो write it down and make sure you tell a friend. Once you start telling a friend, what happens is you revise yourself also. Or tell your parents, आपके घर में, if you're studying at home, आपके friends, आपके parents, आपके brother को, what you do is tell him कि यार हमारा HDI index इतना हो गया, 130 हो गया. So just if you keep using those data facts and you tell your friends, you revise by telling your friends, what happens is वो long term memory में जाता है. We are also going to revise at the end of the sessions. We'll try to revise it.
चलेगा? Things are clear? Give me thumbs up so that we start our first topic. ठीक है? So do not worry if you do not get points, do not worry. I'm going to teach each and every point. ठीक है? In the GS3 syllabus, the first topic is with respect to inclusive growth. Inclusive growth. ठीक? आप जब भी inclusive growth देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स would study inclusive growth from static perspective, but if you analyze what kind of we are going to cover the static part as I've told you. मैंने बोला है कि static part भी cover होने वाला है, लेकिन जब हम inclusive growth देख रहे हैं, हमेशा हम क्या देखते हैं, इसको हम बहुत static perspective से देखते हैं कि हम we only look into the definition of inclusive growth, what are the pillars of inclusive growth. लेकिन यूपीएससी would definitely ask questions. इंक्लूसिव ग्रोथ का वो स्टैटिक पार्ट भी पूछेगा, करंट एस्पेक्ट में क्या चल रहा है. अब करंट एस्पेक्ट में क्या चल रहा है मैं वो बताना चाहता हूं, सो दैट यू आल्सो हैव एन आइडिया. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू, आज का सेशन का जो भी पॉइंट्स है ना, ये ऐसे में बहुत यूज होने वाला है, ऐसे में. तो मेक श्योर ये ऐसे के लिए ये एक व्हाट यू से it's going to be a brahmastra for essay आज का सेशन, because the kind of facts or the kind of analysis we'll be doing would be amazing. आपको बहुत मजा आएगा. चलेगा? So सबसे important है, before I tell you why this topic is important, and every year you have a question, and लेकिन which type of question you can expect from this year's questions, या इस topic पर क्या question आ सकते हैं, is based on the current context. अगर आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, न्यूज आर्टिकल में कब का न्यूज आर्टिकल है, दिस इज May 2025. द आर्टिकल टेल्स दैट इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन एचडीआई इंडेक्स. इट हैज रेजन टू 130th. 3 रैंक से इंप्रूवमेंट हुआ है. बट अगर आप देख रहे हो, बट इनइक्वालिटी परसिस्ट. अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिसेंट न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, दिस डेटा हैज टू बी यूज्ड. कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा. अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, हियर यू विल सी दैट इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. वी हैव सरपास्ड जापान. बट इज द ग्रोथ इंक्लूसिव? Is the growth inclusive? Can you think? Right. Next, again, आज के ही, if you've seen recent news, the Hindu newspaper, is India the world's largest economy? The world's largest, 4th largest economy. The Hindu में amazing analysis आया है, and it has said, it has put down points also. हम newspaper में या कहीं भी क्या आ रहा है, हमारे गोदी मीडिया चैनल्स क्या बोल रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट हो गए. बट एक्चुअली यू हैव टू एनालाइज, इज इंडिया रियली इंक्लूसिव? इज आवर ग्रोथ प्रोसेस रियली इंक्लूसिव? द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू यू टू ब्रेनस्टॉर्म इज, बिफोर वी स्टार्ट, मैं बताना चाह, आई वांट यू टू थिंक इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? सेकेंडली, you have to tell me certain data facts, data points. आपको थिंक करना है, is our story, is India a really inclusive? Is India's growth story really inclusive? Next important thing, you have to see, if you say कि नहीं sir inclusive नहीं है, then what are the barriers? ठीक है, to inclusive growth. Let's think on this front for next 3 minutes. Let's see, how do you think? 3 minutes. Everyone is going to think, everyone is going to scribble on their 1/3 part.
right? चलेगा? चलेगा? Can anyone tell me the definition of inclusive growth? Definition. ठीक है? Definition of inclusive growth. So basically, whenever you will be writing definition of inclusive growth, अब यहाँ एक important trick बताना चाहता हूँ या important चीज ध्यान में रखो. मेंस में अगर आप कोई आंसर का इंट्रोडक्शन कर रहे हो एंड इंट्रोडक्शन में अगर डेफिनेशन लिखना है, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन. जैसे OECD, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू OECD, इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across society and that creates opportunity for all. That is basically inclusive growth. So first is economic growth that is distributed fairly across society and that creates opportunity for all. So once you start writing certain source to your definition, what happens is the examiner thinks, yes, he has got an idea. ठीक है. Another thing which you can remember is just to have an additional UNDP. तो UNDP क्या बोल रहा है? Everywhere inclusive growth is a phenomena where every section of society benefits and participates. ठीक. Every section of society benefits and participates. Or you can also correlate with a famous concept of Gandhi ji. Can anyone tell me कौन सा concept of Gandhi ji? You can correlate inclusive growth is Sarvodaya concept, which calls for universal upliftment or progress for all. So whenever you have to write about inclusive growth, your definition, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तीन ही यूज करना. ठीक है? Ultimately what it would send a message to the examiner is, yes, he knows the exact definition and he's able to link it with concept. Presently what happened why this concept of inclusive growth came forward is, to give you a brief history, what happened is, जब independence हुआ, तो everyone thought that trickle down theory would work. कौन सा theory? Trickle down theory would work. Trickle down theory is, as the economy progress, slowly क्या होगा? Inequality कम होगा. Inequality क्यों कम होगा? Because the benefits of economic growth would automatically percolate down. And what we'll have is an inclusive society. But it did not happen. What Kuznets said was, in the initial part of economic growth process क्या होगा? Inequality बढ़ेगी और बाद में inequality कम होगी, following the trickle down theory. And everyone believed कि यार क्या होगा? Slowly as we progress, economic growth बढ़ती रहेगी. Slowly क्या होगा? Automatically क्या होगा? वो growth process का जो benefits है वो trickle down होके नीचे आएगा and slowly inclusive growth होगा. Slowly it would be beneficial for all. So this is Kuznets curve, आपने prelims में पढ़ा होगा, which talks about as the economy progress, what would happen is the inequality would decrease. But actually ऐसा हुआ? It did not happen this way. And then the concept of inclusive growth came forward, which said कि यार ये automatic, ये invisible hand है वो, that is not going to work. What we would require is, active intervention. So to take economic growth towards inclusive growth, our process has to be in such a format that everyone gets benefit and everyone participates also. It is not that कि घर बैठे अगर what do you say, you are getting 50,000 per month from the government, तो आपको तो benefit मिल रहा है, but are you participating in the growth process? No, then that is not inclusive. You have to get benefit and you have to participate. और
ठीक है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वी रियलाइज इज व्हाट वी वुड रिक्वायर इज एक्टिव इंटरवेंशन. एक्टिव इंटरवेंशन. सो दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्लूसिव ग्रोथ, what where even Thomas Piketty, you have to mention about Thomas Piketty at least once in your what do you say, mains paper, is Thomas Piketty said that Kuznets curve or invisible hand does not work, and every government has to put an extra effort to ensure inclusive growth by taking active interventions. Active interventions क्या है? How do we ensure that economic growth leads to inclusive growth? इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए. तो जब भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिख रहे हो, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिख रहे हो, आपको ये पता चाहिए, अगर एक स्मॉल डायग्राम ड्रॉ करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर इतना ड्रॉ करोगे, यहां लिखोगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. इफ वी have adequate social security scheme, if we have capacity building is we skill individuals. We focus on human development. What it would lead to is this economic growth would turn into inclusive growth or inclusive development. क्लियर है? अगर ये मेरा डायग्राम, मेरा हैंडराइटिंग पुअर है, बट अगर टाइम फ्रेम में आंसर में इंक्लूसिव ग्रोथ में सिंपल आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और ऐसा डाल दिया, द एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड कि यार इसको पता. सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यार क्या आपको कैसे स्मॉल फ्लो चार्ट से, इट कैन नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट. आपको स्मॉल फ्लो चार्ट से बताना है उसको, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, एंड दिस इज माय क्लैरिटी. कब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ में बढ़ेगा? जब आपके पास कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगा, स्किल्स दोगे आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस पर काम करोगे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एंड थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहेगा. आपके पास क्या रहेगा? आपके पास सेफ्टी नेट. प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, दैट इज अ सेफ्टी नेट that would ensure the benefits are reaching. Capacity building से क्या होगा? राइट? क्लियर है? गिव मी थम्स अप. अगर ये कॉन्सेप्ट, ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा हूं, ये आंसर में लिखना है. हाउ वुड यू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम योर अदर्स कॉपीज? बाय स्मॉल चेंजेस, स्मॉल. अब अगर आप, ठीक है, क्लियर है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन विल गो टू. तो जब भी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड इफ यू आर एबल टू पुट द स्मॉल डायग्राम, ठीक है. Another important concept which inclusive growth, this was the initial concept. Now what we have understood is inclusive growth में सिर्फ equity या empowerment ही important नहीं है. Then came a new concept. पहले क्या था? Equity मतलब क्या? उसे क्या करो? उसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दो. एम्पावरमेंट मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करो या ह्यूमन डेवलपमेंट करो. नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन एडेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ इज सस्टेनेबिलिटी. सो जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रहे हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम, यू हैव टू एंश्योर कि हमें इक्विटी जरूरत है, हमें एम्पावरमेंट जरूरत है, हमें सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है. सस्टेनेबिलिटी इन द टू टर्म्स. जैसे मैंने बताया इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, दैट we have to ensure that fairly across society the benefits are distributed fairly across society. Ab this society is which society? Is it just the present generation, that is intragenerational or intergenerational society? If we do, what we do is we cut down all the forest, we go to the mountains, we cut down all the forest, we set up, what do you say, all the mining factories, get out all the minerals, earn a lot of money, distribute among everyone, get people employed there. Would it, मतलब इनिशियल पार्ट में अगर मैंने जो फर्स्ट डेफिनेशन बताया तो उसके अराउंड तो ठीक है, इट वुड बी अ इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ देन वी रियलाइज ऐसा नहीं है, हम सिर्फ इस जनरेशन का नहीं सोच सकते, हमें फ्यूचर जनरेशन का भी देखना है. इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करनी है. इंटरजनरेशनल इक्विटी में क्या आएगा? वी हैव टू एंश्योर दैट आवर एनवायरनमेंट इज आल्सो कंजर्व्ड एंड साइमल्टेनियसली वी आल्सो वांट टू एंश्योर देयर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज व्हाट वी डू इज वी टेक अ लॉट ऑफ लोन फ्रॉम IMF, distribute among everyone, set up some industries based on that excessive loan which we have taken, and what would happen is, who will pay the interest of this loan which we have taken from IMF? The future generation. Would that growth be sustainable? It would not be sustainable. So ultimately what we have realized is
अब यहाँ आप और एक ये डाल सकते हो, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। समझ आया why I did not added this concept in the first part is because initially हम सिर्फ समझ रहे थे inclusive growth is for this generation also, but we have realized is यहाँ हमने क्या बोला है, fairly distributed across society। कौन सी society? Present society and future society that is intergenerational। हमें equity भी ensure करना है। अब ये कैसे generate होगा? जब हम sustainability पर focus करेंगे। sustainability, I hope things are clear। Conceptually, if you are strong, you'll be able to address each and every question. It will be able to address each and every question. Clear hai? Give me thumbs up if the concept here till now it is clear. Give me thumbs up so that I know why I'm trying to go slowest. क्योंकि अगर ये concept समझ आया, this concept can be used in essay across। ये हमेशा use होने वाला, हमेशा use होने वाला, हमेशा use होने वाला है। So what we have moved from is economic growth to inclusive growth, but not just inclusive growth, we have added sustainability also। We have added sustainability, ठीक? Sustainability also, so now the present concept of inclusive growth has equity, empowerment and sustainability। These are the three core pillars। Equity में क्या आएगा? Fair distribution of resources, fair distribution of resources। इसमें empowerment में क्या आएगा? We have to give them skills, human development, health, education आएगा। and sustainability is we have to protect our forest, we have to protect our environment। Thomas Piketty said, Thomas Piketty is a famous economist who is मतलब next few years में he'll be definitely getting a Nobel Prize। He said जो कुजनेट कर्व्स था कि ऑटोमेटिक जो हमारा ये हो रहा है ना कि इनिशियली इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये कुजनेट कर्व है, एंड बाद में इनइक्वालिटी कम होगी। He observed, he gave a data-based analysis, he said ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जब तक यहां इंटरवेंशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो he said कि ये कुजनेट कर्व, the invisible hand, the trickle down theory does not work। He said अगर हम actions नहीं लेंगे तो क्या होगा? inequality बढ़ेगी। and that is what I'm going to prove you is what has happened is the amount of inequality in India has increased। We have focused on economic growth। There has been a recent report by Price report बोल देना, do not go कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है, याद भी नहीं रहने वाला। They have said हमारा गिनी कोएफिशिएंट है has risen by 0.37 से 0.41 के आसपास हुआ है, which shows that इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ी। अब हम तो बोल रहे हैं we are the fastest growing economy, but is it actually leading to benefit? Is it actually benefiting everyone? अब नहीं है। अब इसको कैसे हम इंश्योर करें? तो थॉमस पिकेटी ने he has mentioned certain measures कि थॉमस पिकेटी बोला अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव करना है तो व्हाट क्या करना चाहिए, मैं इसका मेजर्स फ्यूचर में बताऊंगा। इन्होंने बोला है कि अगर if we do not have active intervention by the state to reduce inequality, क्या होगा? inequality बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली कभी कम नहीं होनी। we have to have progressive taxation। उन्होंने बोला state has to play an active role। यहां इनविजिबल हैंड नहीं चलेगा, एक्टिव इंटरवेंशन लगेगा। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन टैक्सिंग द टॉप 1% वेल्दीएस्ट लोगों को। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आपको ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्पेंड ऑन सोशल सिक्योरिटी, यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल क्लियर? थॉमस पिकेटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? थॉमस पिकेटी का आगे क्लियर कवर होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको डेफिनेशन समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, उसके क्या पिलर्स है समझ आया। बेसिकली इट इज वेयर एवरीवन गेट्स बेनिफिट एंड एवरीवन पार्टिसिपेट्स आल्सो। एवरीवन, व्हेन कैन एवरीवन पार्टिसिपेट और व्हेन कैन वन बेनिफिट मिलना? मतलब क्या? आपका क्या हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपका एजुकेशन अच्छा हो रहा है, यू आर गेटिंग वाटर, यू आर गेटिंग गुड फूड। पार्टिसिपेशन मतलब क्या? women are also participating, every section of society, right? Be it SC, ST is participating, youth are participating, and simultaneously we are also ensuring कि यार ये हम sustainably कर रहे हैं, sustainably, ठीक? चलेगा। Apart from that, what I found was 2-3 important statements by Prime Minister Modi and Raghuram Rajan या मनमोहन सिंह, which can be used in conclusion, but I thought कि आप introduction में भी लिखोगे या आपको याद होने चाहिए। Few statement have to be added। अब ठीक है, verbatim याद हो रहा है क्या? Important नहीं है। Important क्या है? उसका core idea भी याद है ना, लिखना है।
You have to show the examiner that you are smart. What I'm trying to give you is the exact wording, but अगर याद भी नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा भी याद नहीं है, तो basic Prime Minister Modi has said that real growth is not possible without inclusiveness. अब उसके उनके हिसाब से real growth is the growth which is inclusive. तो ठीक है, इतना भी बोल दिया. The examiner would think that you have read. मनमोहन सिंह का क्या बोल रहे हैं? Inclusive growth is not a matter of choice, it is a matter of necessity. It is a matter of necessity. ठीक है, it is a matter of necessity. ठीक है, ठीक है. अब नेसेसिटी क्यों है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अब नेसेसिटी क्यों है कि बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट वुड हैपन इज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया. अब इज रियली इंडिया में इज इट इंक्लूसिव? सो व्हाट वी सी in news media is completely different. If you see the ground reality, it is completely different. So you have to have facts which supports your idea. You should have certain facts to highlight the issue. What facts you can give? Though we are the fourth largest economy, but अगर आप PPP terms में, अगर आप per capita terms में देखोगे, हमारा per capita कितना है? $2880, which is we are not even in top 100. So fourth largest है, लेकिन per capita wise देखोगे तो we are not in top 100. ठीक है. HDI index again we have improved by three standings, but it is still 130th. अगर आप inequality adjusted HDI देखोगे, this human development reduces by 30%. क्या हो रहा है HDI में? क्या हो रहा है? एवरेज आउट हो रहा है. एवरेज आउट मतलब क्या? there is one person who is earning 1 lakh and there are 10 person who is only earning 1000. अगर एवरेज आउट करोगे तो क्या होगा? कितना है? you'll have somewhere around 10,000. but actually is it showing the real picture? नहीं. तो inequality adjusted HDI is the real picture which shows that हमारा HDI index further अभी जो 0.69 के आसपास है, 0.7 के आसपास है, ये कम होके ये 30% कम हो रहा है. जो डेटा मैंने ये जो न्यूज आर्टिकल था, ठीक है, दिस न्यूज आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग. इट टॉक्स अबाउट दैट इनइक्वालिटी परसिस. क्यों बोल रहा है कि हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI इज 30% लेस. 30% लेस. ठीक है. अगेन कैन यू से इंडियाज ग्रोथ प्रोसेस इज इंक्लूसिव? नहीं. एक तो है ये सारा डेटा हमने बता दिया. अगेन यू हैव टू हैव दिस डेटा. दीज आर कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो SMA भी काम आएगा एंड अक्रॉस GS3 हर बार काम नहीं वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम देखोगे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में 90% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है. गिनी कोएफिशिएंट is 0.37 से we have increased it to 0.41. मतलब the number जितना close to 0 होता है it shows perfect equality. तो हमारा यहाँ क्या है? inequality बढ़ रही. This is by price study. इतना ही लिखो. क्या है important? क्या है? price study. ठीक. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सॉरी, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स छोड़ दो, पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? WEF. इंडिया का रैंकिंग कितना है? 129th. इवन बिलो आर एशियन काउंटरपार्ट्स. राइट? बिलो आर एशियन काउंटरपार्ट्स. सो दिस डेटा इज important. ठीक है. सो इफ आवर ग्रोथ प्रोसेस इज नॉट हेल्पिंग women टू ग्रो, women के रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट डेटा विच यू शुड नो इज we have close to 57% of women who are anemic in their reproductive age according to National Family Health Survey. Close to 57%. Again, National Family Health Survey ये भी बोलता है 23% of the women between the age of 15 to 49 are undernourished. Is the growth process helping women? No. Though हमारा labor force participation rate of women has increased
from 26%, some say 41, some say 40, but compared to men it is, men का कितना है 72 to 76 के बीच में. नंबर्स थोड़ा सा वेरिएबल चलता है क्योंकि एवरी स्टडी हर बार कोई नंबर डिफरेंट आता है, लेकिन द क्लोजेस्ट इज 72 to 76 के बीच में है. ये मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. फीमेल अभी 41 हुआ है, अभी 41 हुआ. ठीक, अभी 41 हुआ. ठीक ठीक. So this shows that women are not doing good. Women are not doing good. अब again as I said, is it benefiting everyone? नहीं. World Inequality Lab report, World Inequality Lab report says that हमारे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या, या फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट भी सिमिलर रिपोर्ट बोल सकता है. जब भी मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो, ये दो रिपोर्ट आप यूज कर सकते हो, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट या ऑक्सफैम रिपोर्ट. ये चीज बोलता है कि 1% ऑफ द इंडियंस आर ओनिंग 40% ऑफ द वेल्थ. 40% ऑफ द वेल्थ एंड 1% अर्न्स क्लोज टू 22% ऑफ इनकम. सो एनुअल इनकम में से जो टॉप 1% है वो 22% शेयर उनका है. वेल्थ में अगर देखोगे तो 40%. सो दिस शोज आवर ग्रोथ प्रोसेस हैज नॉट बीन इंक्लूसिव. द टॉप 1% आर अर्निंग 40% ऑफ द टोटल वेल्थ, 40% ऑफ द टोटल वेल्थ. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, what we have seen is there has been variation in the growth process. अगर हम देखेंगे even मतलब if we consider Bihar with national average with respect to what do you say per capita income, बिहार का जो per capita income is only 36% of the national average. अगर national average close to 1,80,000 के आसपास है per capita income, बिहार का close to 66,000. So variation देख रहे हो, variation देख रहे हो. So what we have seen is southern states are performing better compared to eastern states. Eastern states. Within states also what we have seen is, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें कि we have only few, Maharashtra is seen as one of the most progressive state, per capita income one of the highest, लेकिन इसमें भी what we have is we have centers of growth. We have, what we say is, in the desert we have few oases of growth. Desert में कैसे, oasis में there is a place where you get water, food, लेकिन overall अगर आप देखोगे desert है. तो महाराष्ट्र में भी what we have seen is there is intrastate difference in growth process. You have Pune, Mumbai, Thane, Nagpur, they are the only places which are growing. उनका ही per capita and the people who are living in these cities, उनका per capita income है. Whereas rest of the cities, especially अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो you can write Marathwada and places of Vidarbh, उनका क्या है, districts. You have per capita income low, per capita income. There is lot of regional variation with respect to growth process. ठीक है, growth process. ठीक है. अगेन अगर हम पॉवर्टी की बात करें, इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से समवेयर अराउंड 12 to 16%. सम फिगर्स, व्हाई आई एम गिविंग यू कि अगर आप 12 भी लिखोगे और 16 भी लिखोगे, मैं दो रिपोर्ट बता सकता हूं नेशनल और इंटरनेशनल का, कि वे 12 to 16% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक. हमारा जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इफ यू हैव सीन न्यूज आर्टिकल, 16% of our youth are unemployed. 16% of our youth are unemployed. 16%, which is a high number. Which is a high number. ठीक. अब
अब मैं दो अलग अलग डेटा भी दिखा सकता हूँ, कोई बोलेगा मतलब Q3 का डेटा अलग है, Q4 का डेटा अलग है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ बोलेगा मई 2025 का डेटा है विच इज 14%। अब what I would like to tell you is even if you quote somewhere roughly around this and periodic labor force survey का अगर आप डेटा देखोगे, अगर इसका रेफरेंस दोगे तो he would understand यार इसने पढ़ा है, इसको पता है कि एम्प्लॉयमेंट डेटा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इंडिया का रैंक 105 है, 105 105। our stunting rate is close to 35.5% in children's. Stunting rate in children's is 35.5%. global hunger index बोल रहा है। So what I would like to tell you is after seeing all this figure, do you think our growth process is really inclusive, really inclusive, really inclusive, really inclusive, really inclusive? ठीक, क्लियर है, सबको क्लियर है व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम इज हमने देखा कि ग्रोथ प्रोसेस कैसी चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या सिचुएशन है। अब ये डेटा फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है, एसए में भी इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी हर जगह यूज होने वाले हैं। मेक श्योर इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। थोड़ा सा 19-20 भी हो गया ना, डज नॉट मैटर। सर कई बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना फिजिटी होते हैं कि उनको लगता है कि यार एग्जैक्ट पता चाहिए, कल जाके कोई नया डेटा आएगा कि उसमें 16 से 17 होगी। इस पर लड़ना नहीं है, इस पर क्या है कि यार आपको एक पता है कितने वुमेन एनीमिक है, 57, क्लोज टू 57% एनीमिक। अब वो नंबर 50 भी हो गया, इवन इफ यू राइट 57 दैट इज अ वैलिड नंबर, क्योंकि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बोल। ठीक ठीक, आई होप ये डेटा क्लियर है सबको। सी इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट इज टू शो दैट though on the face our economic growth, question ऐसा आएगा, on the face our economic growth story seems to be very very positive with India climbing to the 4th stage, but what are the what could be the stark reality, what could be the issues, what could be the issues, what could be the issues, or what is मतलब what you want to understand is, what you should know is, ठीक है हम पॉजिटिव चीजें भी देख रहे हैं लेकिन आपको नेगेटिव भी पता चाहिए, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट यू शुड नो कि यार आपको कहां काम करना, कहां काम करना। ठीक, अगर ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट हैव बीन द पॉजिटिव साइड, हमारे ग्रोथ स्टोरी का पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव्स। ठीक है, ठीक है। अब मेनी स्टूडेंट्स वांटेड कि मतलब पॉजिटिव भी एटलीस्ट 2-3 चीजें आपको पॉजिटिव पता चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना तो नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव में आप बोलोगे 4th है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा इकोनॉमी हैज रिजन टू 4th। पीपीपी टर्म्स में, परचेसिंग पावर टर्म्स में हम थर्ड है। पीपीपी टर्म्स में वी आर द 3rd हाईएस्ट। ठीक है, ठीक ठीक। वी हैव moved out 171 million children's, we have moved out 171 million people out of poverty in last 10 years. global multidimensional poverty index report बोलता है, global multidimensional poverty index। ठीक है, ठीक, हमने 171 मिलियन पीपल, कोई लोग बोलते हैं 240 मिलियन, लेकिन 171 लिखोगे मतलब द टाइम पीरियड अगर आप बोलोगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सेज दैट 171 मिलियन पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ इन लास्ट डेकेड। ठीक, would be great, would be great। our IMR and MMR numbers have greatly improved in the last 70 years and we are now closing towards the developed countries के आसपास हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहुंच रहे हैं। We have been the fastest growing economy, fastest growing big economy, fastest growing economy। We have got one of the highest remittance, close to $110 billion। So these have been few of the points अगर आपको याद रखने हैं, लेकिन जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आएगी तो आपको
ये ऊपर के पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वो प्राइस स्टडी का क्या है, मतलब सी आई देयर इज लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आई हैव, लेकिन अगर आप ये पढ़ने जाओगे, क्योंकि ये हम रिसर्च कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ इतना प्राइस ये स्टडी करो ना, इतना लिखो ना, पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, अगर आप इतना लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। मैंने जो डेटा पॉइंट्स दिया कि 1955 से व्हाट वी हैव सीन इज हमारा गिनी कोएफिशिएंट बढ़ा है, गिनी कोएफिशिएंट मोर देन इनफ। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, अगर इफ आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग एंड मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, shortcut with logic, it would help. Now tell me, what are the barriers to inclusive growth? Can anyone tell me the barriers to inclusive growth? Can anyone tell me the barriers to inclusive growth? See, you can write generalistic point, you can write generalistic points, but अगर उसको आप specify करेंगे तो और भी अच्छा हो जाए। So barriers, one of the major barriers which I think which you should know and which has to be written, जो first point मैंने बताया is policy failure. Policy failure is how our policy evolved. So this is also an important part मेंस पर्सपेक्टिव से। पॉलिसी फेलियर कैसे हुआ, यू हैव टू एक्सप्लेन आल्सो। वी हैव मूव्ड फ्रॉम, हमने जो हमारा जो फर्स्ट सेकंड प्लान है, हमारा जो नेशनल प्लान है, आवर फोकस वाज ओनली ऑन ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रिकल डाउन अप्रोच। हमने क्या फर्स्ट सेकंड प्लान में क्या था, पूरा फोकस किस पर था, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, पीएसयूज पर फोकस था। वी थॉट कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अल्टीमेटली क्या होगा, देन वी रियलाइज थर्ड फोर्थ प्लान क्या रहा हूं कि यार ये फेल हो रहा है। उसके बाद हमने प्लान कौन सा किया, बेसिक नीड अप्रोच। हमने जो डेवलपमेंट प्लान हमने डेवलप किया इस बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड इज रोटी कपड़ा मकान, वी फोकस ओनली ऑन रोटी कपड़ा मकान। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट स्कीम पता चाहिए, अगर 1970s में आपको पता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आप काम करो आपको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, फूड फॉर वर्क, ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, food for work program, so basic need approach also failed. We realized yaar basic need. Then we had right based approach अगर आप देखोगे 2000 में, around 2000 what we had is right to education, right to food, ठीक, right to health, ठीक, राइट टू हेल्थ था। सो ओवरऑल इन तीनों प्लान्स का प्रॉब्लम क्या था कि इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट फंडिंग। लेकिन 2014 में वी रियलाइज, एंड इवन अमर्त्य सेन हैज ऑलवेज बीन सेइंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी अप्रोच would fail, ultimately fail. So our growth process has to be based on कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी इसलिए हमने फोर्थ अप्रोच, जो रीसेंट अप्रोच अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का अप्रोच इज कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब हमने रियलाइज किया कि हमारा पॉलिसी में ही फेलियर था। जो फर्स्ट थी पॉलिसीज थे वेयर द फोकस वाज ऑन ट्रिकल डाउन थ्योरी या बेसिक नीड अप्रोच या राइट टू एन एजुकेशन या राइट बेस्ड अप्रोच में क्या, देयर वाज अ नीड फॉर कांस्टेंट फंडिंग, कांस्टेंट फ्लो ऑफ फंड्स व्हिच वाज नॉट सस्टेनेबल, वेयरएज कैपेबिलिटी अप्रोच कॉल्ड फॉर स्किलिंग द इंडिविजुअल्स, गिविंग देम राइट एजुकेशन, गिविंग देम support to start a business. That is capability approach. So this was our policy failure, was we did not have the right policies which focused on growth. Are you getting this approach? आपका policy failure कहाँ हुआ पता है? हमारा initial part में ही policy failure हुआ है। हमने क्या बोला पहले कि यार इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, फिर इंटरवेंशन किया तो रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, लेकिन कितने दिन, उससे क्या बढ़ रहा था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा। देन वी बोला कि राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, राइट बेस्ड अप्रोच नेसेसरी है, लेकिन अल्टीमेटली वी कैन नॉट गिव एवरीवन the rights. So what we have to have is we have to have capability approach, जो recent approach है, जहां अगर देखोगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, we have stand up
startup stand-up initiative which focus on entrepreneurship. ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है इज विथ रिस्पेक्ट टू, जो आपको लगता है, एक तो मैंने बोला कि पॉलिसी फेलियर रहा है जिस वजह से वी डू नॉट हैव इंक्लूसिव ग्रोथ. सेकंड इज इनइक्वालिटीज. अब जब मैं इनइक्वालिटीज बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी ऐसा पार्ट है कि इनइक्वालिटी इज द रीजन फॉर नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ. एंड इनइक्वालिटी से क्या बढ़ रहा है, मतलब व्हाट यू से, इनइक्वालिटी इज द रीजन आल्सो, रीजन फॉर नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, और इट इज अ बैरियर टू नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, बट इट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ. तो क्या है, इट इज अ विशियस साइकिल. अब विशियस साइकिल कैसे है, बेसिकली जब भी इनइक्वालिटी क्या होता है, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, व्हाट हैपेंस इज, जब भी रिसोर्सेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, इफ यू सी इन विलेजेस, when the village में if you have seen a community, मतलब I've seen मतलब experienced it myself, जब भी if the farmer is not able to earn, the first thing what gets compromised is education. He takes his son, what do you say, daughter on his wife to work. Education compromised हुआ. Education compromise हुआ तो क्या होगा, skills affect हो जाता. Skills affect हो गए तो basically आपका income ही नहीं होता. What you do is you do menial work. अब menial work कर दिया तो फिर definitely non inclusive growth. Inclusive growth नहीं, वो earn नहीं कर सकता, participate नहीं, तो ultimately क्या होगा, marginalization होगा. So this is a vicious cycle what we are facing presently in India. ठीक है. Ultimately what we have seen is there has been a rising income inequality. अगर आप न्यूज आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली दिस इज द मेजर इशू विच द कंट्री इज फेसिंग, राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी. अब इस पर वापस आएंगे, लेकिन लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है. थर्ड, तो दो बैरियर मैंने देख लिया. हमने क्या बताया, इनकम इनइक्वालिटी, और इनकम इनइक्वालिटी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि कितना इनकम इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम रिपोर्ट का भी मैंने बता दिया. क्लियर आ रहा है. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू वन टॉपिक, हम एक टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू, अब क्या होगा, लिंकेजेस जब डेवलप होंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स की, और बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो रही. सो दिस इज अ स्मॉल चार्ट विच यू शुड हैव. यू शुड अंडरस्टैंड कि इनकम इनइक्वालिटीज. अब जब मैं, अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ पर नहीं आए, इनइक्वालिटीज पर आया या इनकम इनइक्वालिटीज पर आया, तो डेफिनेटली जो भी पॉइंट्स मैंने ऊपर बताया, दैट हैज टू बी एडेड, क्योंकि ये दो क्या है, ये विशियस साइकिल में चलते हैं. अगर मैंने बैरियर्स टू, व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हाट यू से, इनकम इनइक्वालिटी बोलोगे तो ये भी आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज दोनों सेम चलते हैं, पैरेलली चलते हैं. ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ इज, हमारा क्या है, वी हैव लॉट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इनफॉर्मलाइजेशन मैंने बताया 90% इनफॉर्मल है. हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूथ इज क्लोज टू 16%. ठीक है. So what happens is, if you are into informal work, you do not have social security, you do not have social safety, you're not covered under various schemes which the government provides. So what we have seen is our economy is informal. That has been the reason for informalization. Another important thing what we have is, we have low human capital. You can add an important point is, हमारे पास जो professional skill trained पर्सनल है वो सिर्फ 4% है, whereas जर्मनी में दिस नंबर इज क्लोज टू 75%. स्किल डेवलपमेंट हमारे पास सिर्फ क्लोज टू 4%. ठीक है. सिर्फ 4%, which is very low. Here you can give एसर रिपोर्ट का भी इनपुट्स दे सकते हो, एसर रिपोर्ट्स का भी इनपुट्स दे सकते हो. ठीक है. एसर रिपोर्ट्स का भी इनपुट्स दे सकते हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा. एसर रिपोर्ट्स का भी. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो हो गया लो ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. एनी अदर रीजन यू कैन से बिकॉज ऑफ विच. अब यहां गवर्नेंस इश्यूज में लिख सकते हो, गवर्नेंस फेलियर. एक तो पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम हो गया एंड गवर्नेंस में फेलियर हो गया. गवर्नेंस में व्हाट वी हैव सीन इज करप्शन. ठीक, करप्शन.
कैन एनीवन टेल मी? एंड द होमवर्क फॉर टुडे इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? इंडिया का रैंकिंग क्या है? व्हाट वी हैव सीन इज रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन की वजह से एमएसएमई ग्रोथ नहीं हुई है, एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ है। ये कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला है। Why our MSMEs are not growing is economic survey 2025 बोलता है what we have is over regulation. Over regulation की वजह से MSME grow नहीं हुआ है, and MSME is the one factor which ensures inclusive growth. क्यों inclusive growth? क्योंकि rural area में है, women included है, small entrepreneurs इसमें included है, तो inclusive growth को right. तो गवर्नेंस फेलियर में आप डाल सकते हो, गवर्नेंस फेलियर में डाल सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहां यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट आर ग्रोथ प्रोसेस विच हैज बीन, मतलब हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट यू से अभी तक का हिस्ट्री रहा है, वी हैव शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, वी हैव स्किप्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच कैन एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हैज बीन unconventional where we have skipped the most important part, that is manufacturing sector। और जो हमारा जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ प्रोसेस में इंडस्ट्री का प्रोसेस होता है, क्योंकि चाइना का अगर ग्रोथ प्रोसेस देखोगे, उन्होंने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग के पास गए, अब नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर, एआई के पास जा रहे हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, जिस वजह से even if they have what do you say autocracy, or you would have single party rule, there's no democracy, still China is being comparatively peaceful। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रोथ प्रोसेस है, they have been able to provide employment, they've been able to provide employment, they've been able to provide employment, they've been able to provide employment। Any other reason which you can suggest where you can put a data and give a reason? ठीक है। Another reason what I think is जिस वजह से we did not have inclusive growth, or one of the barriers to inclusive growth is our social sector spending। Our social sector spending have been low, social sector spending has been low or has been considered to be on a declining trend। अब आपको इसको प्रूफ के साथ प्रूफ करना पड़ेगा, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कम हो रहा है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कैसे कम हो रहा है? व्हाट वी हैव सीन इज मनरेगा का बजट कम हो रहा है, मनरेगा का बजट कम हो रहा है, मनरेगा का बजट कम हो रहा है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ, मतलब अगर स्पेंडिंग जीडीपी में सोशल सेक्टर का टोटल हमारे एक्सपेंडिचर का, ये जीडीपी का नहीं है, एक्सपेंडिचर का है। सोशल सेक्टर में हम कितना स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू आर जीडीपी, कंपेयर टू आर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे 2014 टू 19 हमारा एवरेज 21% था। कोविड में 30% कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ बहुत सारा मनरेगा हमने स्पेंड किया, हमने बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किए, फूड इनिशिएटिव, वी हैड सो मेनी स्कीम्स थ्रू व्हिच वी वर प्रोवाइडिंग फूड एंड फूड ग्रेन्स टू आवर सिटीजंस। अब ओवर द इयर्स अगर आप देख रहे हो ये नंबर प्री कोविड से भी कम है, 19%। तो हमारा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बहुत कम है। अगर जीडीपी में कंपैरिजन में देखोगे तो ये 2.8%, 2.8%, 2.8%, 2.8%। ठीक है, अगर हम देखेंगे लास्ट बजट से, अगर और एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट, सो इसको आप अब ये एकदम बढ़िया चार्ट, सिंपल चार्ट बना सकते हो ना, मैंने तो ये बता दिया, आप क्या बोल सकते हो ऐसा ऐसा, ठीक है, स्मॉल चार्ट बना दिया। लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ आए तभी यूज करना। ठीक ठीक। अब यहां भी हमारा बजट जितना बड़ा है ना, ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फ्रॉम लास्ट बजट टू दिस बजट हमारा 7% से हमने क्या कर दिया, हमारा एक्सपेंडिचर बजट बढ़ा है। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से हमारा सोशल सेक्टर एलोकेशन हैज नॉट इंक्रीज टू दैट प्रोपोर्शनल। बजट एक्सपेंडिचर बढ़ा है लेकिन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हैज नॉट इंक्रीज्ड, नॉट इंक्रीज्ड, नॉट इंक्रीज्ड।
Another important reasons for non-inclusive growth is what we have seen is we have focused more on revenue expenditure compared to capital expenditure. हमारा revenue expenditure is in the form of subsidies. We have not focused on creating capital expenditure. हमारा pensions subsidies पर ज़्यादा पैसा गया है compared to creating capital. Capital expenditure is with respect to creating health, what do you say, hospitals हो गया, education institutes हो गया, infrastructure हो गया, ठीक है. Another important reason why we have non-inclusive growth is we have social barriers. Up why women is not been allowed to go to work or why education is not promoted is because of patriarchy. तो बेसिकली हम एंड सोशल बैरियर्स इज वी हैड फॉलोड अनटचेबिलिटी, मतलब हिस्टोरिकली वी हैड फॉलोड अनटचेबिलिटी व्हिच वाज कंप्लीटली रॉन्ग, व्हिच प्रिवेंटेड द वल्नरेबल सेक्शंस टू come into the mainstream, ठीक है, come into the, तो यहाँ हिस्टोरिकल मतलब बैरियर्स भी बोल सकते हो, सोशल patriarchy, cultural isolation, very good, cultural and societal isolation. ठीक, अब इसमें ही ये तो मैंने बता दिया बैरियर्स क्या है, नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ है. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इनइक्वालिटीज क्यों है, अब ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स आएंगे लेकिन देयर आर अदर पॉइंट की इनइक्वालिटी क्यों है, ठीक है, इनइक्वालिटी के रीजंस भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी की इनइक्वालिटीज क्यों है. तो ऊपर के पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो इनइक्वालिटीज क्यों है, लेकिन अगर इनइक्वालिटीज में पॉइंट्स आए व्हाई वी हैव इनकम इनइक्वालिटी, और मैंने फैक्ट्स भी बताया, फैक्ट्स, ऑक्सफैम रिपोर्ट और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट आपको लिखना ही लिखना है. अगर इनइक्वालिटी आया और ये दो रिपोर्ट का नाम नहीं आया आपके आंसर में तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क. दिमाग में डाल लो, ऑक्सफैम लिखना ही लिखना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है. अब इनइक्वालिटी के अगर रीजंस देखोगे, हमारा जो इकोनॉमिक what had happened is the inequality कब बढ़ी है इंडिया में. The major rise of inequality has been post 1990. हमारा economic reforms, our economic reforms or our shift towards capitalism, our economic growth process, though we have we opened our economy, we shifted from socialistic economy towards mixed economy towards a capitalist economy. This led to rise of inequality, and this was said in जो हमारा वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो हमारा रिपोर्ट है उसमें यही बोला है, उसमें यही चीज बोला है. अब ये कैसे बोला है, आई हैव टू गिव यू अ ग्राफ जिससे ये आपको क्लियर होगा कि हमारी इनइक्वालिटी, अब कैसे इनइक्वालिटी समझ आएगा कि जो टॉप 1% है, अगर ये चार्ट देखोगे, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट है, उसका चार्ट है, ये देखोगे 1922 में टॉप 1% के पास कितना इनकम था was 12%, 12 to 13%. 1950 में ये कम होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, ये नंबर हो चुका है अब 22%. सो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो टू शो कि इनकम इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी, ठीक है. तो एक रीजन रहा है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सेकंड, अब यहां फिर से आप लिख सकते हो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कम हुआ है, मैंने उसका पहले डिटेल दी थी. थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव रिप्लेस्ड जॉब्स. ये ऊपर भी जाएगा पॉइंट. AI has technological advancement, moving from mechanical to steam to IT, and IT to now AI. Technological advancement have replaced jobs. ठीक. Another important reason what Thomas Piketty says is regressive taxation. Does India have regressive taxation? अगर आप देखोगे इनकम टैक्स तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है, वो रिग्रेसिव है. अगर आप देख रहे हो हमारा जीएसटी कलेक्शन क्या हो रहा है, ओवर द इयर्स इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग जीएसटी कलेक्शन. अब जीएसटी इज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिग्रेसिव है.
रिग्रेसिव ऑन द फेस आप बोलोगे सर 12 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं भर रहा है मैं, लेकिन आप डेली बेसिस पर इनडायरेक्ट टैक्स आप यू आर पेइंग इक्वल एज अंबानी। अंबानी अगर 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है फॉर बाइंग एनीथिंग, यू आर आल्सो पेइंग द सेम अमाउंट। दिस इज अ रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। Another reasons why we had what do you say non-inclusive growth is हमारा, अब सोशल तो एक रीजन है, यहां आप इंपॉर्टेंट रीजन बोल सकते हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट ग्रो। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा व्हाट डू यू से वेयर 48% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, एम्प्लॉयड है 48%, दैट इज ग्रोइंग बाय हार्डली 3 to 4% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, एंड दैट इज नॉट इनफ टू टेक bring out these people out of poverty and give them empowerment, give them empowerment, give them empowerment. So agriculture sector, poor growth of agriculture sector. Apart from that, agriculture sector we have not been able to link it to our manufacturing sector or service sector, manufacturing or service sector. Now presently we are focusing on food processing industry, but agriculture sector हमारा main failure point रहा है, जिस वजह से हमारा inclusive growth नहीं है। 48% है ये population जो agriculture पर dependent है, and we have not been able to grow at more than 3 to 4%। economic survey बोल रहा है, I am not saying economic survey। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये एक important है। ठीक है, regressive taxation, regressive taxation। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऊपर के पॉइंट है, फिर से मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉलिसी फेलियर का पॉइंट लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन मेजर रीजन फॉर राइजिंग इनइक्वालिटी जो ग्राफ बता रहा है इज व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ रैपिड व्हाट डू यू से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, वी हैव मूव्ड फ्रॉम सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। अब मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जाओ आप, लेकिन वॉज देयर एनी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट? हमारा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मार्केट्स ट्राई टू क्रिएट इनइक्वालिटी, जिसके पास कैपिटल है, आप देख रहे हो ना 40%, 1% ऑफ द पीपल वेल्थ कितना 40% है, और इसी वेल्थ से क्या होगा, वो इनकम जनरेट करेंगे ना। अब वेल्थ ही इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैपिटलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेल्थ है, ये कैपिटल है, ये जो उनके पास वेल्थ है वो कैपिटल है, इसी कैपिटल से बिजनेस होता है ना। अब जिसके पास कैपिटल ही नहीं है वो बिजनेस करेगा क्या? नहीं। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी तो और भी वो इनइक्वालिटी, सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैज हैपेंड इज इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है। अब आई वांट यू टू थिंक फॉर नेक्स्ट 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, what is the impact of non-inclusive growth and also inequality, rising in income inequality का क्या impact होगा? Think for 2 minutes. Let's see. What could be the impact of non-inclusive? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आगे वो कंक्लूजन में करने वाले थे। ठीक,
Think. Do not write in the comment section because you would impede the others thinking process. आप उसका thinking process क्या करोगे? Impede करोगे. Do not write. Do not write. I think so most of you are live today. So I have an important announcement कि कल का GS3 का session is going to be little early, around 11-12 session रहेगा, around 11 AM. अगर 11 AM आपका दूसरा काम है आप बाद में देख सकते हो, लेकिन लाइव सेशन 11 AM रहेगा बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल रीजंस. 11 बजे रहेगा, ध्यान में रखो. GS3 का सेशन 11 बजे, ठीक है. मेक श्योर रिमाइंडर रखो, फिर बोलोगे सर 5 बजे नहीं हुआ, 11 बजे होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब एज राइटली सेड कि यार इंक्लूसिव, हम इंक्लूसिव, अगर नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ है, हम क्या करेंगे? वी विल बी गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स प्रीएम्बल में क्या बोला है? वी हैव टू हैव अ सोसाइटी विच इज जस्ट, वेयर वी फोकस ऑन जस्टिस. जस्टिस कॉल्स फॉर फेयरनेस. इट कॉल्स फॉर इक्वालिटी ऑल्सो. हमारा डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल? कैन एनीवन रिमेंबर डीपीएसपी? इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है और डीपीएसपी का आर्टिकल आपको याद नहीं है? 38, आर्टिकल 38(2) विच कॉल्स फॉर मिनिमम इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी. मिनिमम इनकम इनइक्वालिटी बोल रहे. 39 भी ये बोलता है देयर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. वेरी गुड. 38 एंड 39. 38 एंड 39. नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नो कॉन्सेंट्रेशन. वही बोलना है. इंक्लूसिव ग्रोथ क्या बोलता है? एवरीवन शुड. वो इनइक्वालिटी में भी ऐड कर सकते हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ये. अब इंपैक्ट में क्या लिखोगे? जब भी आप कोई भी इंपैक्ट लिख रहे हो ना, इंपैक्ट ऑफ नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव, तो इंपैक्ट में फर्स्ट यू कैन राइट इज इकोनॉमिक इंपैक्ट. क्या होता है इकोनॉमिक इंपैक्ट में? व्हाट यू कैन राइट इज इट वुड रीच टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि क्या हो रहा है? ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है. कोई लोग बहुत कमा रहे हैं, कोई लोग कम कमा रहे हैं. इनइक्वालिटी बढ़ेगी विच कैन बी सपोर्टेड बाय डेटा ऑल्सो. गिनी कोएफिशिएंट के डेटा से आप सपोर्ट कर सकते हो. व्हाट यू कैन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इज जब इन ग्रोथ प्रोसेस नॉन इंक्लूसिव है, मतलब क्या होगा? दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ, एजुकेशन. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी. ठीक है, पॉवर्टी बढ़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल इंपैक्ट. क्या होगा? सोशल इंपैक्ट में व्हाट वी विल सी इज राइजिंग सोशल अनरेस्ट. This is been said to be one of the reasons. Non-inclusive growth is said to be one of the reasons for Naxalism in India. Another important reason, one of the important social impact of non-inclusive growth is हम जो देख रहे हैं ना, rising regionalism. अब regionalism is rising because of non-inclusive growth. Some part of India is growing fast. The eastern part is not growing fast, and what we see is migration. And once there is migration, there is increased fight for the same resources, and it leads to the feeling of regionalism. What we see is crimes increases. If you see rise of poverty, unemployment, they try to find alternative source to get money, majorly through unethical means. So societal impact definitely have to be written. Societal impact. ठीक है. अब again, if you've seen, there's been rise of reservation. One of the reasons for rise of reservation is what? Agriculture sector is not growing because our growth process has been uneven. What happens is same resources, the existing resource, there has been division of land, plus the agriculture is not growing. What happens is, in such situations, you have seen even in Maharashtra, even in Haryana, Rajasthan, in most of the regions, you see a rising demand of reservation. Rising societal reasons are both.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा ऑफ नॉन इंक्लूसिव? सी, inclusive growth is required for environment, for environment sustainability. कैसे? Imagine you do not have inclusive growth, you do not have money. What would happen is you will not have, what do you say, money to buy fuel through LPG gas cylinder. What you would do is you will burn wood. So it, जब non inclusive growth होता है तो pollution. And Indira Gandhi once said poverty is the biggest polluter. So अगर हमें पोल्यूशन या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा? हमें फोकस करना पड़ेगा, अगर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। What happens when there is non-inclusive growth is environment gets the first, मतलब environment vulnerability start हो जाती है, pollution start हो जाता है, and degradation. What people do is they start excessively using natural resources. They'll be cutting down trees for resources. Unsustainable. ठीक, ठीक, अनसस्टेनेबल। ठीक है, इकोनॉमिकली आप ये बोल सकते हो, स्लोली व्हाट इट वुड लीड टू इज इट वुड लीड टू इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज बेसिक रिसोर्सेस आपको देने पड़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट मतलब इट वुड लीड टू राइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इट वुड लीड टू राइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इट वुड लीड टू राइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? यहां सोल्यूशन में यू कैन राइट अबाउट नीति आयोग, इंडिया एट, नीति आयोग रिपोर्ट लिखो, इंडिया एट 75 रिपोर्ट, इंडिया एट 75 जो रिपोर्ट आया था उसमें 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी दी थी टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी। अब इसमें 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी में द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज व्हाट दे सेड वाज व्हाट वी हैव टू अचीव इज इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच इज क्लोज टू 8%, 7 to 8% फॉर 20 years। ठीक है। Second, they said we have to invest in infrastructure. Third, they said what we have to have is governance improvement in governance. We have to bring transparency, accountability, and ease of doing business. And fourth important thing, what it said was what we have to have is social inclusion, where there is more social safety nets, focusing on हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स इंप्रूव करना पड़ेगा। सोशल इंक्लूजन पर काम करेंगे। सोशल इंक्लूजन इज वेयर वी फोकस ऑन सोशल सेफ्टी नेट्स लाइक इंश्योरेंस स्कीम्स, वी फोकस ऑन इंप्रूविंग द हेल्थ, वी गिव हेल्थ इंश्योरेंस, वी गिव देम एजुकेशन। सोशल इंक्लूजन पर फोकस करना। ठीक है, थिंग्स आर क्लियर? गिव मी थम्स अप यहां तक थिंग्स आर क्लियर। सोल्यूशन हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थिंग्स आर क्लियर, यहां तक समझ आया? ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक हम और? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी, यहां तक क्लियर है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां तक क्लियर है? समझ आया सबको? समझ आया? समझ आया? ये रिपोर्ट लिखना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर हम पॉइंट्स और लिख सकते हैं, लेकिन अगर इससे लिखोगे हाउ वी कैन अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, नीति आयोग का रिपोर्ट है वो, ये 4 पिलर्स है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा? इनकम जनरेट होगा फास्टर। तो जैसे मैंने बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना तो नहीं हो सकता ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा? कैपिटल जनरेट होगा, मनी कैसे जनरेट होगा? अब वो मनी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सोशल इंक्लूजन से करना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सोशल इंक्लूजन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें गवर्नेंस इंप्रूव करना है, दैट वुड लीड टू इंक्लूसिव। अब इसमें स्कीम्स क्या लिखना है? व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन, इफ इट हैज टेकन एनी स्टेप यू कैन राइट, जो भी गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है। सो द एंटायर बजट 2025 का पूरा बजट
is based on inclusive development और inclusive growth, which says that अगर हमारा inclusive development होगा तो विकसित भारत हम achieve कर पाएंगे by 2047. Why we need to have inclusive development or inclusive growth is if you want to achieve the goal of विकसित भारत by 2047, the only path is inclusive development. Inclusive. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब बजट में क्या बोला है? हम एग्रीकल्चर पर काम करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर काम करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे, स्किलिंग पर बात करेंगे, हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, हम एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज। समझ आ रहा है? अब ये सारे भी कहाँ फिट हो रहे हैं? ये चारों पार्ट्स में ही फिट हो रहे हैं, चारों पार्ट्स में ही फिट हो रहे हैं, चारों पार्ट्स में ही फिट हो रहे हैं, चारों पार्ट्स में ही फिट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वाई वहां यहां जो गवर्नेंस रिफॉर्म क्यों बोला गया, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्यों जरूरी? सी कैन वी हैव आर सो हु विल बी इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स? गवर्नेंस के स्कीम्स कौन इंप्लीमेंट करता है? स्कीम्स अल्टीमेटली कौन? ब्यूरोक्रेट्स। इमेजिन अ ब्यूरोक्रेट। हमें अगर इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना है तो हमें किस पर देखना होगा? वी हैव टू सी समवन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट, who is most vulnerable, who is facing all the problems. अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी। अब कब आइडेंटिफाई कर सकता है? उसके पास एम्पैथी एंड कंपैशन। सो एम्पैथी एंड कंपैशन आर द बेसिक नेसेसिटीज इफ यू वांट टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जब एम्पैथी एंड कंपैशन जब GS4 में देखोगे तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ वहां भी क्लिक होना चाहिए। यार क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ कब अचीव होगी? जब ब्यूरोक्रेसी में एम्पैथी एंड कंपैशन है। इफ यू सी अ पर्सन, इफ यू सी अ चाइल्ड हु इज मालनरिश्ड, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, IAS ऑफिसर हो, आप ये देख रहे हो कि एक अंडर 5 चिल्ड्रन है हु इज हैविंग मालन्यूट्रिशन है, क्वाशरकर है या उसको मेरास्मस है, ही इज फेसिंग, तो आर यू गेटिंग अ फीलिंग टू वर्क फ्रॉम? कंपैशन का फीलिंग आ रहा है? एम्पैथी एंड कंपैशन क्यों जरूरी है? व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिलेबसेस? क्योंकि यहाँ जो हमने गवर्नेंस रिफॉर्म्स देखे थे, इट्स नॉट जस्ट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ इथिकल रिफॉर्म्स भी जरूरी है। इथिकल रिफॉर्म्स भी जरूरी। वी हैव टू हैव अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर व्हिच इज फोकसिंग ऑन एम्पैथी एंड कंपैशन। अब ब्यूरोक्रेटिक, क्योंकि इमेजिन इफ यू डू नॉट हैव अ ब्यूरोक्रेसी विद एम्पैथी एंड कंपैशन, वुड इट लुक फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन? नहीं। एंड हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन पिलर इज क्या? जो मोस्ट समवन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट, someone who is standing in the last line, अगर वो बेनिफिट हो रहा है तभी we would consider to be inclusive growth. अब what a famous statement by Pandit Jawaharlal Nehru, he said the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. Every tear from every eye. So basically every tear from every eye is someone who is standing in the last. Someone who is most vulnerable. Someone who is most vulnerable. So ultimately अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना है, हमें ब्यूरोक्रेसी में क्या लाने की जरूरत है? एम्पैथी कंपैशन अलॉन्ग विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन उसके साथ एम्पैथी एंड कंपैशन बहुत जरूरी है। एम्पैथी एंड कंपैशन जो GS2 में भी हम देखेंगे, GS4 में भी देखेंगे, लेकिन एम्पैथी कंपैशन ब्यूरोक्रेसी में नहीं है तो वो क्या, वो पॉलिसीज ही नहीं बना पाएगा फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। ही वुड नॉट हैव एन आइडिया। वो अपने AC के रूम में बैठ के बना सकता है कि पॉलिसीज फॉर द पुअर? नहीं बना सकता। तो ब्यूरोक्रेसी में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए व्हाई वी रिक्वायर। ठीक। अब क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ले रहा है? आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दो स्कीम की कौन से स्कीम है। एनी स्कीम विच इज फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, any scheme which is focusing on education, any scheme which is focusing on health, any scheme which is focusing on social security is leading to inclusive growth. अब क्या measures government ले रहे हैं? I want you to fill today. एग्रीकल्चर के स्कीम्स कौन से? एजुकेशन के कौन से? हेल्थ के कौन से? सोशल सिक्योरिटी नेट कौन सा है? NPS भी डाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यू हैव टू ऑल्सो एड गवर्नेंस रिफॉर्म्स दैट वुड ऑल्सो इंश्योर inclusive. That would also ensure inclusive.
ठीक है, ये तो स्कीम्स हो गया। अब क्या मेजर्स लेने चाहिए, मतलब ये तो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, गवर्नमेंट मेजर्स से आपने स्कीम्स लेके, और क्या लेना चाहिए, और मेजर्स, और वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड में, वे फॉरवर्ड में what more needs to be done. Number one measures what has to be taken to ensure inclusive growth is we have to have progressive taxation, a taxation system which is more progressive. Secondly, we have to focus on ensuring that our growth, our employment generation or is in line with latest technological development. Employment skilling or generation, or what do you say, our skilling has to be based on latest technological development. So if we are having AI development, we have to focus on employment, our skilling process in this direction. Third is we have to focus on empowerment of the marginalized section. Fourth is we have to focus on ठीक है, investment in social infrastructure, increasing investment into social infrastructure. ठीक। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन में यही लिखना है कि the goal of Viksit Bharat can only be achieved with a inclusive growth process. The goal of Viksit Bharat can be achieved through inclusive growth process, which is based on equity, empowerment and sustainability. क्लियर है? आपने विकसित भारत 20, you can say the goal of our Prime Minister Modi to achieve the goal of our Prime Minister Modi to make India a Viksit Bharat can be only achieved through the inclusive growth process, which is based on equity, empowerment and sustainability. क्लियर है? अब यहाँ मोदी भी डाल दिया आपने, या यहाँ ये भी लिख सकते हो, the goal of सर्वोदय of महात्मा गांधी can be achieved. So you have to be smart enough कि अगर मैंने 2-3 कोट दिए तो एक कोट मैं कहाँ इंट्रोडक्शन में लिखूं, एक कंक्लूजन में लिखूं. You have to be smart enough कि जो मेरा डेटा है, जो मेरा स्कीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहाँ यूज करूं, कौन सा पॉइंट मैं कहाँ यूज करूं. So imagine you write this conclusion where you use Mahatma Gandhi or you use a famous personality, right? Has everyone understood what I have taught today? Has everyone understood? Give me thumbs up. ठीक है, initially you will find my sessions to be fast. As I said in the orientation, it is not we are fast. Everyone, give me thumbs up. Everyone, I am so happy that you were there till the end. क्योंकि आज का सेशन वाज अ फर्स्ट सेशन, आई वांटेड टू एक्सप्लेन थिंग्स, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ेगी एंड विल कवर मोर टॉपिक्स. लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या है, वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट्स एंड गेट बेनिफिट्स. इमेजिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में 48% पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना, 18%. इज इट? ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि व्हाई इंडिया इज नॉट इंक्लूसिव, हमारी ग्रोथ स्टोरी इंक्लूसिव क्यों नहीं. Do share your notes on Telegram 8830115524 and do let me know कि आपको सेशन कैसा लगा, because it motivates me to bring more sessions. हमारा हार्डवर्क के पीछे क्या रीजन है? Ultimately what we want is आपको अच्छा लगे, that is our greatest goal. तो make sure ये कॉन्सेप्ट समझ लो. Tomorrow session at 11 AM as I've already mentioned. फर्स्ट सेशन था इसलिए we wanted to go little slow. फ्लो चार्ट्स क्लियर है, लेक्चर में मिले, डालने हैं. आपको कोट्स मिले, डेफिनेटली डालने हैं. आपको चार्ट्स मिले, डेफिनेटली डालने हैं. आपको डेटा पॉइंट्स मिले, याद कर लो, किसी को सुना लो आज. सी
इट्स जो भी पॉइंट्स हमने लिए हैं ना, इट इज नॉट जस्ट स्टैटिक. मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, ये आर्टिकल्स जाके सर्च करना. ये जो आर्टिकल्स है ना, ये 2 आर्टिकल सर्च करना एंड आपको पता चलेगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ये पॉइंट डालना है आपके आंसर में. वी वुड गिव यू पीडीएफ, अपलोड हो जाएगा 1 घंटे में, डू नॉट वरी, ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. ये जो है ना, ये हमने इंटीग्रेट किया है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम में देखेंगे तो 2880 ही है, विच इज नॉट इवन इन टॉप 100. जापान का कितना है? 40,000 है. अगर हम जापान के कंपैरिजन में कर रहे हैं, मतलब द प्रॉब्लम व्हाट वी आर डूइंग इज, जापान का पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर, और मोर देन 10 टाइम्स, more than 10 times. And the problem with GDP is, मतलब the problem is GDP is not, इसको ऐसे लिख सकते हो, GDP is not people's welfare. ठीक. अगेन मैं एसर रिपोर्ट का, मैं जो रिपोर्ट बता रहा था, यू राइट डाउन वो एसर रिपोर्ट का जो डेटा पॉइंट्स मैं बताना चाहता था. एसर रिपोर्ट जो रिसेंट रिपोर्ट आया है, एसर 2024, 2-3 पॉइंट्स ही याद रखना है. पूरे रिपोर्ट्स अगर याद रखना स्टार्ट करोगे तो पॉइंट्स याद ही नहीं आएंगे. इट सेज दैट क्लास 76.6% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड क्लास 2 टेक्स्ट. 76% of class 3 cannot read class 2 text. 66% cannot do basic subtraction. 66% basic subtraction. ठीक, ये 2 भी लिखोगे तो more than enough. Enough. We have to be smart enough. How do we use the same data at multiple times? Multiple times. Have everyone added this diagram? It's barriers पता चल गए. The first था, लेकिन this topic is going to come in G, आपके ऐसे में एक बार तो आने वाला. You have to have points. You have got points. नीति आयोग का हमने क्या बोला है कि 4 पॉइंट पिलर है: इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सोशल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मोदी गवर्नमेंट, मोदी का बोलो विकसित भारत. देयर इज क्लियर, नो नीड. चलेगा. अगर आपको सेशन पसंद आता है, डू लेट मी नो ऑन आवर टेलीग्राम नंबर, दैट इज 8830115524, जो यहाँ नंबर दिया है. मेक श्योर, डू लेट मी नो, डू शेयर योर नोट्स. पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो अपलोड रहेगा. कोई भी प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल टीम का नंबर मैंने दिया है सबको. आपके टेलीग्राम ग्रुप पर टेक्निकल टीम का नंबर है. इनिशियल 1-2 दिन में देयर कुड बी ग्लिचेस. डू नॉट वरी, फोकस ऑन द कंटेंट. दिस कंटेंट हैज टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. हर एक पॉइंट में अगर आपके पास, मैं आपको आगे जाके 3-4 लेक्चर्स का ट्रिक बताने वाला हूं, हाउ डू यू रिमेंबर पॉइंट्स. ठीक है, क्लियर है. इनइक्वालिटी आया तो ऑक्सफैम यूज करना. नोट्स 8830, ये नंबर जो दिया है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसके टेलीग्राम, उस पर टेलीग्राम मैसेज करना है नोट्स. क्लियर है एवरीवन? I want your attention, I want your presence tomorrow also 11 AM. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल ट्राई टू लिंक इट. इसी को लिंक करते करते अब चलेंगे, आपको मजा आएगा सेशंस में. ठीक है, तो चीजें याद रखनी है, रिवाइज कर लो, किसी दोस्त को पढ़ा लो, उसको पूछो आपको पता है क्या कुजनेट्स कर्व, थॉमस पिकेटी पता है? थॉमस पिकेटी लिखना है. Whenever we'll be writing about progressive taxation, you should know that. मतलब one of the surveys suggested कि out of the total tax, मतलब अगर 100 रुपीज हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 67% और 67% इज पेड बाय द बॉटम 2/3%. बॉटम 2/3%. 67% ऑफ द टैक्स इज पेड बाय बॉटम 2/3%. अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ये द बॉटम 2/3% should pay less taxes, but what is happening is they are paying more taxes.
Or okay, I got that data. So basically, out of every 100 rupees that India collects as a tax, 64, not 67, 64 comes from poor and middle class in the form of GST and income tax.